In this video, I am going to discuss the kinetics of zero order reaction and first order reaction or the integrated rate expression. So first, for zero order reaction, kinetics of zero order reaction. Or you can say the integrated rate expression for a zero order reaction. Same things. So first suppose A is the reactant, it is converted to product. A is a reactant, से product form करूँ and suppose small a is the initial concentration of A. Small a is the initial concentration. It means the concentration of A at time t is equal to 0. Initial concentration of reactant A. And let small x is the amount or the concentration of A that is changed to product. X is the amount or concentration of A getting converted to product. X is the amount of A changed to product. That means X quantity gets converted to product. So at time t, this is at time 0, at t is equal to 0, initial concentration. So after time t, X amounts gets converted to product. So the amount left at time t is A minus X. A is the initial concentration, X amount gets changed, so the amount left at time t is equal to A minus X. Amount left of A at time t. So according to rate law, the rate expression of this reaction will be, so the small rate is equal to dx by dt. Dx is the small change in concentration, dt is the small time interval. So rate is equal to the rate constant and the concentration of A at time t. And the power of the concentration term will be 0 since it is a zero order reaction. Now replace dx by dt equal to k since the value of this is 1. Dx by dt is the instantaneous rate of the given zero order reaction and k is the rate constant. K is the rate constant of the given reaction. Rate constant. Now implies dx will be equal to k dt. Now taking integration on both sides of this equation, we will get, integrating both sides, we get or implies the integration of dx will be x and that of k is a constant, so it is taken as outside, k integration of dt, that is equal to k t, and we will add a constant here, suppose I. Since the integration has no limit, इधर किसी limit नहीं नो, तो इन्हें कोटे constant ऐड हवा, इधर हमें integration को जाने जो. I is the integration constant. So we get x is equal to kt plus I. Okay, this is equation 1. ଏବେ ଆମକୁ କାଣା କରବାର୍ ପଡ଼ବା, ଆଇ ର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ବାହାର କରବାର୍କେ ପଡ଼ବା. ଆଇ ର କିଛି କାମ ନାଇଁନ, ତ ଆମକୁ ଆଇ ର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ବାହାର କରବାର୍କେ ପଡ଼ବା. So in order to find the value of I, we have to apply some conditions here. The conditions are at the beginning, time will be 0. That means at beginning, when t is equal to 0, the value of x is also 0. Because x is the amount gets converted to product after time t,
So at time t is equal to 0, x will be also 0. Putting the value of t and x in equation 1, we get the value of I. X is equal to 0, t is equal to 0, and I. So implies I is equal to 0. We get the value of I, that is I is equal to 0. And now putting the value of I in equation 1, we get in another expression, we get x is equal to kt plus 0, or x is equal to kt. This is called the integrated rate expression for zero order reaction. So this is equation 2. Equation 2 is the required equation. X is the amount gets converted to product of the reactant, K is the rate constant, and T is the time at which X gets converted to product. So X is equal to KT is the integrated rate expression for zero order reaction. So from this equation we know the concentration only depends upon the time. It is independent of rate, or you can say rate is independent of the concentration of the reactant for a zero order reaction. Now what is half-life of the reaction? Half-life period of a reaction. Half-life period of a reaction is the time period. It is the time. So half-life period of a reaction is the time at which half of the reactions is completed, or we can say when the concentration of the reactant is reduced to half. We can say half of the reaction is completed, and the time at which this happens is called the half-life period of that particular reaction. Okay, तो जेन टाइम रे गोटे रिएक्शन रो अधा कंप्लीट हेसी, मान तार रिएक्टेंट जिते कंसंट्रेशन थिबा तार 50% प्रोडक्ट कन्वर्ट हो जावा, तो से टाइम पीरियड के आम कहमा हाफ लाइफ पीरियड है। तो तुम केमती लिखमा, तो ये आम टी हाफ रे डिनोट करसु। टी हाफ लिखले भी चलसी और T.5 लिखले भी चलसी। तो टी हाफ माने हाफ लाइफ। तो काଣା कहला, तो ये टाइमटा है टी हाफ। टाइम टी हाफ केते बेले हवा, जिते बेले तार इनिशियल कंसंट्रेशन हाफ हो। तो आम काण नहीं देला रिएक्टेंट इनिशियल कंसंट्रेशन आम ए नहीं देला, तो जिते बेले ए इज इक्वल टू ए बाय 2 हो, मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन 50% हो, मतलब हाफ हो। तो जेन टाइम रे हवा ताकि आम कहमा हाफ लाइफ पीरियड है। तब टी रो वैल्यू ए रो वैल्यू ए बाय 2 हो, एक्स रो वैल्यू केते हो, एक्स रो वैल्यू हो केते ऑल्सो ए बाय 2। तमने ए थिला सेन 50% कंज्यूम हो गला, माने ए बाय 2 सॉरी पलेगला, माने ए बाय 2 बाकी रहला। तो एक्स भी ए बाय 2 हो जावा, ए भी ए बाय 2 हो जावा। तो ये वैल्यू को मैं पुट करमा इन इक्वेशन 2, व्हाट वी विल गेट, we will get x a by 2. Putting the value of t and x in equation 2, we will get a by 2 is equal to k t half, implies k is equal to a by 2 टी हाफ, और टी हाफ is equal to a by 2k. This is the half life period of a zero order reaction. तो half life period of a zero order reaction. So we know the half life is directly depend upon the initial concentration of reactant. When the concentration of reactant is more, the half life will be more. When the concentration is less, the half life will be less. So from this we know T half of a zero order reaction is directly proportional to the initial concentration of reactant A. So this is about the half-life of a zero order reaction. Now we will plot some graphs. First graph, the graph of the properties of zero order reaction. Properties of zero order reaction. Properties of zero order reaction. The first point, all we know, rate of a zero order reaction is independent
of the concentration of reactant. Rate is independent upon the concentration. Rate is independent upon the concentration of reactant. Rate is independent of the concentration of reactant. Upon the concentration of reactant. The first property is zero order reaction of the concentration of reactant. For a zero order reaction, second point, what is the second point is half-life of a zero order reaction. 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 Zero order reaction directly depends upon the initial concentration. So directly proportional to concentration of reactant. And third point, concentration of reactant of zero order reaction. Concentration of reactant is inversely proportional to time. Inversely proportional to time. टाइम बढ़ी बढ़ी गले concentration टा कमी कमी जासी. ये भी तीनटा property. Now we will plot some graphs. The first graph is this is x-axis, sorry y-axis. This is x-axis and y-axis. In x-axis, ameno kana nama? In ameno nama suppose in nama concentration reactant, nama rate. Since the rate of zero order reaction is independent of the concentration, the plot will be like this. Whatever the concentration, the rate is constant, the rate is fixed. So this is the rate versus concentration graph for a zero order reaction. The second graph is concentration versus time. Concentration of reactant versus time. The plot will be like this. What does it mean? It means when the time increases, the concentration of reactant gradually decreases. Concentration of reactant, concentration A. When the time increases gradually, the concentration of reactant decreases. And the third plot is, third graph is T half-life versus initial concentration. That means initial concentration or concentration of A. Initial concentration of A. And the graph will be like this. T half is directly proportional to the initial concentration of A. When the concentration जो concentration टा अधिका हवा हाफ लेफ्ट होता है अधिका concentration कमी गले हाफ लेफ्ट कमी तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हवा. So this is all about a zero order reaction. अच्छा आम टाइम के जीरो ऑर्डर रिएक्शन लगे सपोज तो टोटाल टाइम तो गोटे जीरो ऑर्डर रिएक्शन टे कंप्लीट होगा लगे केते टाइम लगुच आम के बाहर करमा सिंपल आम कण करमा जेन आम टी जगह टी हाफ पुट करूँ टी जगह टी माने केते टाइम लगुच 100% तो टी 100% कंप्लीट होगा लगे केते टाइम लगे तो 100% कंप्लीट होले कण एक्स र वैल्यू केते होइबा ए टोटाल तमने रिएक्टेंट सरले कण कहि पारमा रिएक्शन टा कंप्लीट होला बोले तो एटा कण अमाउंट केते सरुजे तो टोटाल तमने जिते आम नीतिला सब सरीगला रिएक्टेंट रो इनिशियल कंसंट्रेशन जिते थिला दैट इज इक्वल एक्स हेगला तबे हम कहि पारमा रिएक्शन टा कंप्लीट होला बोली तो बोले हम पुट कर दमा सो पुटिंग द वैल्यू ऑफ टी एंड एक्स इन द रेट एक्सप्रेशन व्हाट वी विल गेट एक्स इज इक्वल टू ए केटा के टीटा टी implies the time required for the 100% completion of a zero order reaction is equal to a by k. By this expression we can calculate the total time required for the completion of a complete completion of a zero order reaction. Okay, so this is all about your zero order reaction. Then we will move towards the kinetics of first order reaction. Kinetics of first order reaction. Kinetics of first order reaction, FIRST, first order reaction. तो गोटे नहीं जमा जनरल एग्जांपल ये हूँ रिएक्टेंट ये प्रोडक्ट फॉर्म करूए सिमिलरली
ये है तार इनिशियल concentration x concentration suppose सरीगला concentration gets consumed, concentration of A gets consumed, concentration of A gets consumed at time t, so concentration left will be A minus x, left at time t. Now we will apply the rate equation. So the rate expression will be rate will be equal to rate constant and the concentration left at that time. Here the power will be 1, not 0, because it is a fast order reaction. We can write dx by dt, the small rate or the instantaneous rate. Dx is the concentration change, small change in concentration. Dt is the small time interval, will be equal to rate constant A minus x. Now we have to simplify this. This implies dx by A minus x and k dt. Now integrating both sides, we will get integrating or taking integration on both sides. Since k is a constant, it can be taken outside dt. That implies the integration of dx upon a minus x will be minus ln a minus x. That is equal to k is the constant and the integration of dt is t, and here also we add the constant, integration constant. Here also we apply the conditions in order to find the value of I. When time is equal to 0, x will also 0. At time t is equal to 0, the value of x will be also 0. Putting the value of this in equation 1, we will get minus ln a is equal to k into 0 plus I, or implies I is equal to minus ln a. Putting the value of I in equation 1, we will get minus ln a minus x is equal to k t minus ln a. That implies minus ln के हमें ऐड करनी है तो कहना है ln a minus x is equal to kt, और implies kt के हमें सेट करनी है kt is equal to कहना है ln a by a minus x. That implies k is equal to 1 by t ln a by a minus x. आम ln के log रे भी कन्वर्ट करें दैट इज इक्वल टू 2.303 by t log a by a upon a minus x. So we get the right expression h k is equal to 2.303 by t log a upon a minus x. This is the required equation, or you can say this is the integrated rate expression for first order reaction. K is the rate constant, T is the time period, A is the initial concentration of the reactant, A minus X is the concentration left after time T of the reactant. Okay, so now we have to calculate the half-life period. So half-life period expression,
half-life period of first order reaction. Half-life period of first order reaction. Here also we apply the same condition. Half-life period means the time will be T half and the initial concentration will be A by 2. X also will be A by 2. Putting the value of T and X in the value of the initial concentration will be initial concentration, X will be A by 2. X will be A by 2. So A minus X will be also A by 2. A minus X will be also A by 2. Putting the value of T and X or T or A minus X in the red expression or in equation 3, we will get the value of K is equal to 2.303 T half dot log of A by A minus X A by 2. That is equal to 2.303 by T half log A upon A by 2 will log 2, and we know the value of log 2 is 0.3010 implies K is equal to 2.303 upon T half into 0.3010, that is equal to the result of 2.303 into 2.3010 will be equal to 0.693 by T half. So what we get? We get T half half-life period of a first order reaction is equal to 0.693 by K. Equation 4 is the red expression of half-life, or this is the half-life period expression, you can say. T half is equal to 0.693 by K. From this equation, we know the half-life period of a first order reaction is independent of the concentration of the reactant. Okay, so some properties, or we can plot some graph properties. First, the general property, rate of the reaction is dependent upon the concentration of reactant. Half-life, although the half-life is independent upon the concentration of reactant. Half-life is independent of the concentration of reactant, but the rate is dependent on the concentration. So we have to plot some graph. The first graph will be the general graph. X-axis, Y-axis. Here concentration term, here time. So the general graph will be like this. Okay, the second graph will be here the half-life, or here the rate, here the concentration of reactant. This graph will be also like this, concentration of reactant. Or we can draw another graph. Here the rate, then the half-life T half, and the concentration of reactants of A here. This is independent. Sorry, here we have to take T half, and here we have to take the concentration of reactant. So the plot is simply straight line because the T half is independent upon the concentration of the reactant. This is the wrong graph. So this plot will be rate and concentration of reactant. Graph ta kana jiba
एंता ओरिजिन नो प्रॉब्लम ओरिजिन चलो फ्रॉम ओरिजिन। तो कंसंट्रेशन जिते अधिका हवा रेट से फास्ट हवा, कंसंट्रेशन जिते कमी जावा रेट से कमी जावा। तो सिंपली ए स्ट्रेट लाइन starting from origin because rate is proportional to the concentration of reactant. So this is all about the kinetics of first order reaction. Now what is the temperature coefficient of a reaction? Temperature coefficient. What is temperature coefficient? Temperature coefficient. Temperature coefficient. आम आगु पढ़ीचु टेम्परेचर तो आम गोटे रिएक्शन रेट केमती इफेक्ट करसी जानी टेम्परेचर बढ़ला रेटा भी बढ़ी आसी बिकज रेट कन्स्टांट इज डायरेक्टली डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर। टेम्परेचर में जिते बढ़ामा रेट कन्स्टांटा बढ़ी आसी और रेट कन्स्टांटा बढ़ीगला आम जानसु रिएक्शन रेटा भी बढ़ीगला बोली। अच्छा और आम पढ़ी भी जब गोटे रिएक्शन टेम्परेचर में जस्ट 10 डिग्री बढ़ाईदेमा 10 डिग्री सेंटीग्रेड और केल्विन जब बढ़ाईदेमा बेले तार रेटा डबल और ट्रिपल हो आसी। तार रेटा डबल कि ट्रिपल 2 गुणा कि 3 गुणा हो आसी जस्ट 10 डिग्री बढ़ाईदेले। तो आम पढ़मा केमती कर आसी सपोज गोटे रिएक्शन टेम्परेचर हूँ 300 डिग्री T1 टेम्परेचर से गोटे रेट शो करुचे टेम्परेचर में जस्ट इनक्रीज करदेना 10 डिग्री T2 डिग्री इनक्रीज करदेना तो तार रेट भी बढ़ी आम जानीचु। सपोज T1 हो जो आम नंबर 300 डिग्री केल्विन जनरल 300 डिग्री नहीं आ T2 टा 310 तो 10 डिग्री डिफर कला T1 T2। तो T1 टेम्परेचर मन कर तार रेट कन्स्टांट है K1 T2 टेम्परेचर है K2। तो एबे K2 by K1 will be equal to 2 or 3. That means रेट कन्स्टांटा जो 10 डिग्री टेम्परेचर डिफर करवा तो तार वैल्यूटा डबल कि ट्रिपल हो तो इतर में जानला रेट कन्स्टांट बोले रेट भी बढ़वा तो रेटा भी डबल ट्रिपल हो तो यहाँ कहे टेम्परेचर कोएफिशिएंट सादा बुझेगा। तो जदि गोटे रिएक्शनटा गोटे पार्टिकुलर टेम्परेचर होची आउ तार टेम्परेचर आम इनक्रीज कला बाय 10 डिग्री सेंटीग्रेड तो रेट काना हो रेटा 2 गुणा कि 3 गुणा बढ़ी आउ द रेशियो ऑफ द रेट कन्स्टांट डिफरिंग बाय टेम्परेचर ऑफ 2 डिग्री सेंटीग्रेड सॉरी 10 डिग्री सेंटीग्रेड तो से ताकर रेट कन्स्टांट और रेशियो मान को आम कहमा टेम्परेचर कोएफिशिएंट जेन रेट कन्स्टांट मान को रेशियोटा काना 10 डिग्री डिफर करदेवा टेम्परेचर 10 डिग्री टेम्परेचर डिफर करदेवा बुझल। तो सिंपली आम लिखि पारमा कि T1 plus 10 by KT1 is equal to 2 or 3 ये को ऐसे टेम्परेचर कोएफिशिएंट है। तो रेशियो ऑफ रेट कन्स्टांट्स of a reaction having a temperature difference of 10 degree centigrade or Kelvin is double or triple and this is called temperature coefficient बुझल। तो अच्छा से रेट कन्स्टांट क्या हम तब T1 टेम्परेचर बाहर करदेमा आ गए T1 प्लस 10 डिग्री रे बाहर करदेमा तो जनरली क्या T1 के आम 300 नेसुँ आ T2 के 310 नेसुँ। अच्छा तो टिके आम एक्सप्लेन करवा केमती हो देखो आम टे सपोज आम जानीचु टेम्परेचर फ्रॉम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस क्या जानू काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो टेम्परेचर बढ़ले मॉलिक्यूल मानकर काइनेटिक एनर्जी बढ़ी आसी काइनेटिक एनर्जी बढ़ीगले क्या से मॉलिक्यूल मैंने बहुत स्पीड मुव करेंगे बहुत स्पीड मुव कले से तार भितर कोलिजन जोर से हे तो कोलिजन रेट बढ़ी जावा कोलिजन रेट बढ़ीगले क्या है ताकर से मैंने जिते जिते तक कोलिजन रेट बढ़वा से इजिली प्रोडक्ट फॉर्म करेंगे तो तक रेट ऑफ फॉर्मेशन प्रोडक्ट फास्टर हो तो सिंपल तो टेम्परेचर बढ़ला रेटा बढ़ी आसी। अच्छा हम देखमा जगह तो टेम्परेचर बढ़ला है काइनेटिक एनर्जी बढ़ी जाए काइनेटिक एनर्जी बढ़ला वेलोसिटी मॉलिक्यूल मानकर वेलोसिटी बढ़ी जाए। अच्छा देखो 300 डिग्री टेम्परेचर रे केते डिग्री बढ़ुचे
300 डिग्री टेम्परेचर जदि 10 डिग्री राइज कला 10 डिग्री राइज करुचे के 10 डिग्री टेम्परेचर राइज करुचे 300 डिग्री हेलो तो 300 डिग्री रे 10 डिग्री टेम्परेचर राइज करुचे तो 100 रे केते राइज करवा कथाटा बुझला 100 रे केते राइज करवा 100 राइज करवा आपका कैलकुलेशन 3.3% ओनली 3.3% जो 300 डिग्री रे 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ुचे 100 डिग्री रे केते बढ़ा माने परसेंटेज इंक्रीज इन टेम्परेचर 3.3% ओनली 3.3% टेम्परेचर इंक्रीज करी गले तार रेटटा डबल और ट्रिपल हो जाउजी कथाटा बुझेला तो 3.3% अच्छा 3.3% तार टेम्परेचर इंक्रीज कला वेलोसिटी केते बढ़ुजे हमें जानी जो तो कैटेगरी हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू टेम्परेचर तार केते बढ़ुजे 3.3% हाफ तो कांस्टेंट मास भी कांस्टेंट तो वेलोसिटी केते परसेंट बढ़ुजे 3.3 रा रूट ओवर सर केते इज सिंपली लेट्स से 1.8 तो 1.8% तो जस्ट 1.8% वेलोसिटी बढ़ू जाव वेरी नेग्लिजिबल नंबर तो जदि 10 डिग्री टेम्परेचर बोले वेलोसिटी बढ़ुचे 1.8% माने तार परसेंटेज देखमा बेले 3.3% बढ़ुचे तार कना टेम्परेचर वेलोसिटी केते बढ़ुचे ओनली 1.8% आ 1.8% वेलोसिटी बढ़ले त माने तार रेटटा डबल ट्रिपल हो जाउजे 2 गुना 3 गुना हो जाउजे तो इधर में जाला जस्ट स्लाइड इंक्रीज इन वेलोसिटी the rate becomes double or triple तो यहाँ गोटे अजब कथा लगे कि टिके वेलोसिटी बढ़ुचे किंतु रेटटा डबल और ट्रिपल हो जाउजे तो जे हेले भी कन्फर्म हो पारबा हेते जोरे तो कोलिजन ना हबार केनता करी तमने एटा फॉर्म होजे तो इना गोटे जने कन्फर्म एटा भी पारबा जे वेलोसिटी बढ़ी करी तार तमने रेट डबल ना हबार आ गोटे फैक्टर इन काम करूची वेलोसिटी जिते चला ओनली दैट 2% बढ़ुए 2% बोले तो हेते जोर रेट ने बढ़वार कथा तो इथुर आम जानला जे वेलोसिटी के छाड़ी करी आ गोटे भी काना जिनिस बढ़ुए जेटा कि रेटटा के से 2 गुणा कर दउछे जदि वेलोसिटी 2 गुणा 2% बढ़ुए बोले रेटटा टिके बढ़वार कथा वेलोसिटी 2% बढ़ुए माने रेटटा भी टिके बढ़वार कथा 5 2 3 4% बढ़वार कथा कम बढ़वार कथा किंतु जेतु डबल पूरा 100% 200% बढ़ी जाउजे just 1.8% increase in the velocity the rate increases by 100%. It is almost impossible types तो इन में जानला टेम्परेचर बोले वेलोसिटी संगे संगे आ गोटे काना भी बढ़ुचे अच्छा तो ग्राफ टे आम शो करमा सपोज काना हो देखो जगह आम नहीं जमा गोटे ग्राफ इन में नहीं फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल सपोज फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स आउटा भी आम जानी मॉलिक्यूल्स माने कोलाइड करी करी प्रोडक्ट फॉर्म करसन तो से जिते जोरे कोलाइड हेबे आ जितेटा मॉलिक्यूल कोलाइड करबे सेते इजीली प्रोडक्ट फॉर्म करबे ताकर रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट बढ़ी जाबा आ जगह में एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स ग्राफ के लंबा कर दमा एक्सिस के तो गोटे पॉइंट नेला हमें फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल आ गोटे जगह एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट अच्छा तो मन T1 टेम्परेचर रे ग्राफटा हो जेनता दिस इज T1 टेम्परेचर 300 डिग्री बोले कहूँ 300 डिग्री टेम्परेचर आम बढ़े देला टेम्परेचर बढ़े काना हेसी ग्राफटा के शिफ्ट करवा हेसी टेम्परेचर बढ़े देला ग्राफटा शिफ्ट करूँ तो यहाँ T2 टेम्परेचर दैट इज 310 है ना 300 डिग्री सेंटीग्रेड 310 इतु आम कण देखु T1 टेम्परेचर जो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल तो मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स रो एनर्जी तमना एतकी थिला एनर्जी थिला जेते टेम्परेचर आम इंक्रीज कर दउछु ग्राफटा शिफ्ट हो टुवर्ड्स राइट साइड दैट मीन्स एबे फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स पोजीशन एनर्जी इंक्रीज कर जाउछि तो मॉलिक्यूल मानकर एनर्जी बढ़ी जाउछि ग्राफटा स्लाइड शिफ्ट करू
एबे इन काना होतला इन सेडेट कोने गोटे सेडेट कर दम देखि एतकी मोलिकुल ता माने न रिएक्टिव थिले माने एबे इन एतकी मोलिकुल रिएक्टिव हे गेले तो ग्राफटा ऑलमोस्ट डबल ट्रिपल हे जाउजे इतर में जानला जे जेतो टेम्परेचर बढ़ी आसी वेलोसिटी खाली 2% बढ़ुजे किंतु मोलिकुल मानकर एनर्जी बढ़ी जाउजे आ मोलिकुल मानकर एनर्जी बढ़ी गले से माने एनर्जेटिक हे गले काना हेबा इजीली प्रोडक्ट फॉर्म करबे एनर्जेटिक जेते हेबे से मानकर कोलिजनटा सेते इफेक्टिव नोटा टर्म से इफेक्टिव कोलिजन आ इनइफेक्टिव कोलिजन कोलिजनटा केते बेले इफेक्टिव हेसी जेते बेले मोलिकुल मानकर एनर्जी बहुत बढ़ी आसी इफेक्टिव कोलिजन एंड इनइफेक्टिव बोले काना जेते बेले कोलिजन हेबा किंतु किसी लाभ नहीं दे माने प्रोडक्ट फॉर्म नहीं हो इफेक्टिव कोलिजन माने मोलिकुल माने कोलिजन करी जेते प्रोडक्ट देबे हम कहमा कोलिजनटा इफेक्टिव जेते बेले कोलिजन हो जन किंतु किसी प्रोडक्ट फॉर्म नहीं हबार वैल्यूलेस हो जे तो हम कहमा इनइफेक्टिव कोलिजन तो इतरो में जानला टेम्परेचर बढ़ी गले इफेक्टिव कोलिजनटा बढ़ी आसी वेलोसिटी बहुत कम 2% बढ़ुजे किंतु नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन्स डबल ट्रिपल हो जाउजन इन जेते इफेक्टिव कोलिजन दोतिले तो इफेक्टिव मोलिकुल्स माने थिले टेम्परेचर जस्ट 10 डिग्री बढ़ी गले ग्राफ शिफ्ट हो जाउजे हम जानू जो तार डबल हो जाउजन हला तो जेतो नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन बढ़ी जाउजे रेट ऑब्वियसली बढ़वा आ केते बढ़ुजन देखो इन फ्रैक्शनटा बहुत छोट थिला इन फ्रैक्शनटा बढ़ी गला तार 2 गुना कि 3 गुना हो जाइए तो रेट देले ऑब्वियसली बढ़ी जाउजे हला तो इतरा में जानला गोटे रिएक्शन रे फिजिबल हबार लगी इफेक्टिव कोलिजन निहाती दरकार खाली मोलिकुल माने कोलिजन कले जे प्रोडक्ट फॉर्म हेबे सेटा रंग कांसेप्ट तो इफेक्टिव कोलिजन हेले कि प्रोडक्ट फॉर्म हे परवा सो इफेक्टिव कोलिजन इज द ओनली रेस्पोंसिबल प्रोडक्ट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट ओके तो इफेक्टिव कोलिजन ना हेले मोलिकुल माने प्रोडक्ट दे नहीं पारन तो पॉइंट अच्छा तापर हमें देखमा व्हाट इज एक्टिवेशन एनर्जी व्हाट इज एक्टिवेशन एनर्जी वेरी इंपोर्टेंट शॉर्ट नोट भी आसे एग्जाम रे एक्टिवेशन एनर्जी में बेसी नहीं लिखबार तो हमें बुझवा लगे चेष्टा करूँ अच्छा इन गोटे आम टर्म जानला एक्टिवेशन एनर्जी एक्टिवेशन सॉरी आम जानला इफेक्टिव कोलिजन बोले काना जेन कोलिजन माने प्रोडक्ट फॉर्म करि पारसन मोलिकुल माने कोलिजन हे करी प्रोडक्ट फॉर्म कले तो हमें कहि पारमा इफेक्टिव कोलिजन मोलिकुल माने करोजन मोलिकुल माने कोलाइड करोजन किंतु प्रोडक्ट फॉर्म नहीं करबार हमें कहि पारमा तो कोलिजन आर इनइफेक्टिव और वैल्यूलेस कोलिजन बोले हमें कहि पारमा अच्छा तो केन मोलिकुल माने इफेक्टिव कोलिजन दी पारबे जेन माने हाईली एनर्जेटिक हितिबे जेन मोलिकुल माने हाईली एनर्जेटिक हितिबे से माने ही इफेक्टिव कोलिजन दी पारबे अच्छा मैं खाली हाईली एनर्जेटिक तो कहले नहीं होय गोटे पार्टिकुलर एनर्जी रेंज थिबार कथा अच्छा इन गोटे टर्म आसुचे थ्रेशोल्ड एनर्जी बोले काना हमें देखमा थ्रेशोल्ड एनर्जी तो सादा ओडिया रे कहले थ्रेशोल्ड एनर्जी बोले होची हमें जानि छु समस्तिंगर किसी ना किसी एनर्जी थिसी तो जिते बेले भी गोटे रिएक्टेंट मोलिक्यूल नौ छु तार किसी गोटे एनर्जी थिसी मने कर हम गोटे रिएक्टेंट मोलिक्यूल्स नै जाऊ तार किसी गोटे एनर्जी अछि किंतु इतार एनर्जी जिते बेले थ्रेशोल्ड एनर्जी संगे समान नहीं हुई सेते बेल जाए ये मोलिकुल्स माने जिते कोलिजन कले भी किसी लाभ नहीं दन कथाटा बुझेला तो मोलिकुल मानकर इफेक्टिव कोलिजन हवार लगी से मान को थ्रेशोल्ड एनर्जी रो वैल्यू जिते है सेते एनर्जी पोजेस्ट करवाटा कंपलसरी है बुझेला तो थ्रेशोल्ड एनर्जी गोटे एंता एनर्जी लिमिट वैल्यू एंता लिमिट है जिते बेल जाए रिएक्टेंट मोलिकुल्स माने ई वैल्यू जाए नहीं आसबे माने थ्रेशोल्ड एनर्जी जिते से रिएक्शन लगी है सेते एनर्जी मोलिकुल माने पोजेस नहीं करबार जाए से माने जिते कोलिजन कले भी प्रोडक्ट फॉर्म नहीं कर तो ताकर कोलिजन इनइफेक्टिव बोली कहमा सो इफेक्टिव कोलिजन हबार लगे मोलिकुल्स मान को थ्रेशोल्ड एनर्जी वैल्यू पोजेस करबार के पड़वा तो थ्रेशोल्ड एनर्जी बोले काना थ्रेशोल्ड एनर्जी रो एनर्जी संगे समान हबार के पड़वा किंबा अधिका हेले भी चलवा किंतु कम हेले मोलिकुल मानकर कोलिजन इफेक्टिव नहीं हुए से माने खाली कोलिजन करबे प्रोडक्ट नहीं दियन तो हमें सिंपली कहना कहमा तो सर्टेन मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी पोजेस्ड बाय द रिएक्टेंट मोलिक्यूल टू मेक द कोलिजन इफेक्टिव और टू फॉर्म द प्रोडक्ट इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड एनर्जी गोटे सर्टेन मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जेन मोलिक्यूल मानकर एनर्जी इतार मन कर थ्रेशोल्ड एनर्जी 50 किलो जूल होला गोटे रिएक्शन रो इटा गोटे रिएक्शन हो ए ऑफ प्रोडक्ट इरो रिएक्टेंट माने अछन तो रिएक्टेंट रो एनर्जी 50 किलो जूल रो कम हेले प्रोडक्ट फॉर्म नहीं करे
कोलिजन करबे नो डाउट मॉलिक्यूल्स माने किंतु प्रोडक्ट नहीं दियन तो कमा इनइफेक्टिव कोलिजन मन कर इतार एनर्जी 50 किलो जूल रु अधिक आईगला तो से इजिली कोलिजन कर प्रोडक्ट देवे 50 किलो जूल हेले भी चलवा तार अधिक हेले भी चलवा जो थ्रेशोल्ड एनर्जी एनर्जी बैरियर तो ये बैरियर के रिएक्टेंट मॉलिक्यूल मान को पार हबार के पड़वा प्रोडक्ट फॉर्म करवार लगी तो ये रिएक्शन लगी सपोज 50 किलो जूल हो एनर्जी बैरियर तो जेन जेन मॉलिक्यूल मानकर एनर्जी 50 किलो जूल रु अधिक अच्छे कि 50 किलो जूल से मैंने ही इफेक्टिव कोलिजन दी पारबे इन मन कर 100टा मॉलिक्यूल्स अच्छा रिएक्टेंट रे से भीतर 20टा मॉलिक्यूल्स रो एनर्जी 50 किलो जूल कि अधिक अच्छे बाकी 80टार नाइन तो ना 20टा मॉलिक्यूल ही इफेक्टिव कोलिजन दे पारबे 80टा दे नहीं पारन बुझेला तो 20टा मॉलिक्यूल कोलिजन करी करी जहाँ देवार कथा प्रोडक्ट देवे बाकी 80टा इनइफेक्टिव कोलिजन एमान एज यूजुअल रही जिवे प्रोडक्ट फॉर्म करी नहीं पारन बुझेला तो ये थ्रेशोल्ड एनर्जी गोटे तुम एनर्जी बैरियर है ये वैल्यू के मॉलिक्यूल माने पास नहीं करबार जाए रिएक्टेंट मॉलिक्यूल माने पास नहीं करबार जाए कि अटेंड नहीं करबार जाए इफेक्टिव कोलिजन नहीं दियन तो प्रोडक्ट फॉर्म नहीं हो पारे। अच्छा तो ये कथारे आम देखमा ये एग्जांपल देखमा 100टा मॉलिक्यूल नहीं जो आम 20टा मॉलिक्यूल इफेक्टिव कोलिजन देकर प्रोडक्ट फॉर्म कराऊन 80टा इनइफेक्टिव हो जाऊन 80टा तमने वैल्यूलेस हो जाऊन किंतु आम जिते गोटे रिएक्टेंट नेसुँ आम सब चाहूँ 100% प्रोडक्ट पाइबार लगे आमको 100% प्रोडक्ट दरकार तो 100% प्रोडक्ट पाइबार लगे जहाँ जहाँ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स अच्छा समस्त को रिएक्ट करबार पड़वा समस्ते इफेक्टिव कोलिजन दे पार्बार कथा जेहेतु इन खाली 20टा दे पारुन 80टा दे नहीं पार्बार तो 80टा के आम एंता करमा इमान भी जनता इफेक्टिव कोलिजन दे पारबे तो इमान को भी थ्रेशोल्ड वैल्यू के थ्रेशोल्ड लेवल के एनर्जी बैरियर के पार कराबार अच्छे तब काण करमा ये बाहर साइड आम एनर्जी दमा तो ये आमको बाहर एनर्जी देकर ये वैल्यूटा के अटेंड कराबार अच्छे ताले जाकि आम 100% प्रोडक्ट पाई पार्मा अरे घंटी बोले केते बेले पार्बा जिते बेले आम ताके एनर्जी दमा बाहर आम एनर्जी दमा आउ ताके एक्टिव करमा तो आम बाहर जिते अमाउंट ऑफ एनर्जी दमा सेटा हला एक्टिवेशन एनर्जी बुझेला तो आम मॉलिक्यूल के इनएक्टिव एमानकर पाखे थ्रेशोल्ड एनर्जी नहीं न तो ये इफेक्टिव कोलिजन दे नहीं पारन तो ये आमको एक्टिव करवा लगे बाहर किसी गोटे एनर्जी देवार के पड़वा तो से एनर्जी के कहमा आम एक्टिवेशन एनर्जी तो मॉलिक्यूल के एक्टिव करवा लगे जेन एनर्जी दिया जाए एक्टिवेशन एनर्जी सादा कथा तो बुझेला तो थ्रेशोल्ड बेले कण मॉलिक्यूल मान को इफेक्टिव कोलिजन करवार लगे गोटे सर्टेन एनर्जी बैरियर के पार हबार के पड़वा तो से एनर्जी बैरियर के आम कहूँ थ्रेशोल्ड एनर्जी थ्रेशोल्ड लिमिट वैल्यू भी कहे थ्रेशोल्ड लिमिट वैल्यू तो जेन मॉलिक्यूल मानकर थ्रेशोल्ड लिमिट वैल्यू TLV थ्रेशोल्ड लिमिट वैल्यू नहीं न तो से आमको बाहर साइड रो एनर्जी देकर एक्सट्रा एनर्जी देकर एक्सट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी देकर एक्टिव करवा पड़वा और जिते अमाउंट ऑफ एनर्जी बाहर साइड रो दिगला ताकि आम कहमा एक्टिवेशन एनर्जी बुझल तो सो व्हाट इज एक्टिवेशन एनर्जी the extra amount of energy required by the reactant molecules to attain the threshold limit value